Virat, you guys were competitive throughout the How do you choose your team? Based on what? Well, I suppose honestly that Team playing to something. And I couldn't think of any. What did you see? Are different people being interviewed? Yes. Today we are going to deal with the interview. The interview by Christopher Sylvester. Christopher Sylvester wrote a very, very important topic, chapter, the interview prescribed in class 12 syllabus, where he discusses about the problems associated with the interview. जब लोगों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, so what are the different opinions of the famous people and how interviews are always challenging. Today we are going to deal with all those aspects, right? So this chapter has two parts. First chapter discusses about what actually an interview is and how it affects everybody's personality, positively or negatively, if any. And the second part actually deals with the interview of a popular writer, Umberto Eco. Right? So let's begin with the first part where the interview is being talked about. कि कब interview शुरू हुए, उनका effect क्या है? So let's see. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. ठीक है, लोग बहुत सारे पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार्स, सभी के इंटरव्यूज होते हैं. जो भी कुछ अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, those who make something wrong in the society, everybody is being interviewed, right? And people get motivated, people come to know about the actual realities. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. तो सभी ने कोई ना कोई इंटरव्यू सुना होगा, पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम. द इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर of English in India, which discusses about interviews. A few days back, the economic advisor was interviewed in the same manner when some famous personality like sports person etc achieves something, uska interview kiya jata hai, what were the basics, how the preparations were done. These some different questions are asked. And then so it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. ठीक है, तो सबके बारे में इंटरव्यूज के लिए ओपिनियंस अलग अलग हैं. कोई इसको पॉजिटिव मानता है, कोई नेगेटिव मानता है. Some might make quite extravagant claims, for it is as a being in its highest form a source of truth and in its practice an art. तो कुछ लोग इसको एक आर्ट फॉर्म मानते हैं, ठीक है, कि इंटरव्यू लेना भी एक कला है. It's also an art. Some people take very tough interviews, so लोग इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं. उनके सामने क्योंकि टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप क्यों फेल हुए, आपकी पॉलिसीज क्यों फेल हुई, आप समझ रहे होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ. Whom I am talking about, the person who has never given an interview since he has been at the head of the country, है ना, हमारे देश में. तो कुछ लोग इंटरव्यूज कभी भी नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको डर है, उनसे बहुत कठिन सवाल, टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. टफ मतलब सच्चाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, which they don't want to actually answer. They want to avoid them. उससे बचना चाहते हैं, उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाए, इसलिए. ठीक है. Others, usually celebrities who see themselves as the victims, might despise the interview. और celebrities जो हैं, जो famous personalities होती हैं, उनको बहुतों को नहीं समझ में आता है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है इंटरव्यू से उनकी पर्सनैलिटी डिमिनिश होती है, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है. कोई टफ क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया, है ना, how is your affair between this and this, how you managed to steal the role from that, suppose किसी सैफ अली खान से, सपोज सैफ अली खान से पूछ दिया आपने शाहरुख खान का रोल कैसे हासिल कर लिया. तो इट्स अ टफ क्वेश्चन ना, व्हाट इज इंटरनली बैक ऑफ द स्टेज गोइंग ऑन, ये जान पाना. अगर ये हर चीज बैक ऑफ द स्टेज किसी पॉलिसी को डिसाइड करने में, मूवी बनाने में, किसी टीम को बिल्डअप करने में, अगर जो कैमरा के पीछे चल रही है, यानी कि एट द बैक ऑफ द स्टेज, एट द बैक इन द बोर्ड रूम्स,
जो पॉलिसीज चल रही है सब चीजों सामने नहीं लाई जा सकती, अदरवाइज दे विल बी फ्यूरोर और आउटक्राई हो जाएगा, लोग चिल्लाने लगेंगे, दे विल प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट। सो वो हेट करते हैं इंटरव्यू, despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives। तो वो मानते हैं कि ये हमारी लाइफ में इंट्रूजन है, हमारी पर्सनल बातें, हमारी वो बातें जो सबके सामने नहीं आनी चाहिए, उसमें घुसपैठ करते हैं। इंट्रूजन मीन्स घुसपैठ करते हैं और वो सबके सामने ले आते हैं, which is not good। और feel that it somehow diminishes them, और सोचते हैं कि इससे, अब सपोज मान लो विराट कोहली से पूछ दिया जाए, जैसा इसमें देखिए, Virat, you guys were competitive throughout the series, but the fact that these kind of tags, that the best Indian side in the last 15 years, do these things put extra pressure on you, or do you actually believe you are? We have to believe we're the best side. Why not? But is this the best Indian side in the last 15 years? That's what your What do you coach think? said. What do you think? I'm not sure. You're not sure? That's your opinion. Thank you. तो क्या देखा आपने कि विराट कोहली से पूछा गया कि क्या ये सबसे अच्छी टीम है पिछले 15 सालों में, तो विराट कोहली ने क्या उल्टा क्वेश्चन कर दिया। अब इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। जो टीम 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव की टीम जीती और प्रेजेंट टीम में अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीती है तो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। द सर्कमस्टेंसेस, द सिचुएशंस, द प्लेयर्स, एवरीथिंग वाज क्वाइट डिफरेंट। देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम प्लेड इन द 1983-80s when Kapil Dev's team won the World Cup, and जो विराट कोहली की टीम थी उसमें डिफरेंट था सिचुएशन, समझे? तो वो लोग हेट करते हैं, इसलिए गुस्सा हो जाते हैं और feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody that one is stealing the person's soul। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं किसी की फोटो खींच लेना उसके पर्सन का सोल खींच लेना है, यानी कि आपने उसकी, भाई फोटो के मिसयूज होते हैं तो आजकल, तो फोटो खींच लेने का मतलब है कि कोई, ऑल द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन गेटिंग क्लिक, ऑल द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जैसे स्टेज फियर होता है लोगों को, वैसे कैमरे का भी फियर होता है, शाय होते हैं, फियरफुल होते हैं। सो दैट्स व्हाट द राइटर इज टेलिंग, ठीक है। वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था, इंडिया के राइटर हैं ये। 2001 में ही गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन राइटर हैं, मतलब राइटर ऑफ द करेंट टाइम, जो आजकल की सिचुएशन, आजकल की चीजों के बारे में लिखते हैं, राइट। feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। जैसे भी आपने कोहली का एग्जाम्पल देखा, गुस्सा आ गया कोहली, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इंटरव्यूअर है वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछ देगा तो जैसे आप टीवी चैनल पे देखते हैं इंटरव्यू के लिए बैठा लेके लड़ाई होने लगती है। Why there is a quarrel? Why is there a fight? There is a fight because they are asking such questions. The questions about truth, सच सच्चाई के बारे में पूछ रहे हैं, समझे? Lewis Carroll, the creator of the Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer। तो लुइस कैरल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी, इतनी फेमस बुक लिखी जिसके ऊपर कॉमिक स्ट्रिप्स बनाई गई, वो भी बहुत डरती थी, वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी। She was extremely fearful of taking interviews and he never consented to be interviewed। ठीक है। It was his horror of being lionized which made him the circle would-be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph। तो वो सोचती थी कि लुइस कैरल सोचते थे, वो सोचते थे कि इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, बाकी लोगों की पर्सनैलिटी डिमिनिश हो जाएगी। अगर वो किसी के बारे में बोल देते हैं, मान लो कुछ सच बोल दिया उन्होंने किसी के बारे में, मान लो विराट कोहली रोहित शर्मा के बारे में बोल जाते, या यहाँ पर देखिए इस इंटरव्यू में, If a guy walked in for an interview without a shirt on, and I hired him, what would you say? He must have had on some really nice pants. तो इस आदमी से क्या पूछा गया? इस आदमी से पूछा गया
कि कोई अगर आदमी बिना शर्ट के आ जाए इंटरव्यू के लिए तो ये मान लीजिए इस तरीके का कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो किस तरीके से पर्सनैलिटी डिमिनिश हो सकती है किसी की। तो इसलिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। समझ में आया? And the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with such satisfaction and amusement. तो वो क्या करते थे? तो वो जान पहचान के लोगों के बारे में इंटरव्यू पे बात नहीं करते थे। Interviewers and the persistent petitioners of his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success. तो वो जो सक्सेस की जो उनकी स्टोरीज थी वो उससे किससे रिलेट करते थे? वो अपनी सक्सेस की स्टोरी में उन सभी लोगों को चुप करा देते थे जो इंटरव्यू करके उनकी बाल की खाल निकालना चाहते थे, जो उनको क्रिटिसाइज करना चाहते थे, जो उनके इंटरव्यू के थ्रू सच बलवाना चाहते थे और दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है, तो वो सभी क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने ऐसे बातें कही जिससे इन सबके मुंह बंद हो गए। तो इंटरव्यूज बहुत ही टफ होते हैं, जैसे ये आपने देखा एलन मस्क ने भी देखी। एलन मस्क How do you choose your team? Based on what? Well, I suppose honestly that it tends to be gut feel more than anything else. So when I interview somebody, my interview question is always the same. It's What do you just, ask? I said, tell me the story of your life. And the decisions that you made along the way and why you made them. And then and also tell me about some of the most difficult problems you worked on and how you solved them. And that question I think is very important because the people that really solve the problem, they know exactly how they solved it. They know the little details. And the people that pretended to solve the problem, they can maybe go one level and then they get stuck. एलन मस्क बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि कोई पर्सन जो है जो अपनी कहां से आए हो, अपनी लाइफ स्टोरी बताओ, तो हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ अच्छे से चीजों को बता देंगे, सारी चीजें बताएंगे, if they have struggled and if they have put a lot of effort, and some would try to shy away from it, तो वो क्या है? वो कमजोर है, वो चीटर्स हैं। रेडियर्ड किपलिंग expressed an even more, रेडियर्ड किपलिंग का आपने नाम सुना ही होगा, जंगल बुक, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, देखी होगी, सभी ने देखी है। वेरी फेमस ब्यूटीफुल कॉमिक स्ट्रिप है ना, बहुत ही अच्छी है बच्चों की कहानी, जंगल बुक, द फेमस वन। एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यूअर, वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, ठीक है, इंटरव्यूअर के लिए, उनको बिल्कुल भी इंटरव्यू करना पसंद नहीं था। His wife Caroline writes in a diary for the 14th October 1892, October that the day was wrecked by the two reporters from Boston. उनकी वाइफ ने डायरी अपनी लिखी थी, उसमें लिखा कि उनका दिन एक खराब कर दिया इंटरव्यूज में। क्या हुआ? She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it's immoral." तो उन्होंने कहा ये इमोरल है, आप उल्टे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं मैं और वाइफ रिलेशन में कब से थे, आप पूछ रहे हैं कि मैंने किसके रोल की जगह पे अपना रोल लिया, मैंने इसको बनाने के लिए, जंगल बुक बनाने के लिए, लिखने के लिए, इसके लिए मैंने किन किन चीजों को नुकसान पहुंचाया, कहाँ से थॉट्स चुराए, सपोज इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दें तो क्या होगा? इट्स इमोरल। आप वो एक हिंदी की कहावत नहीं है, आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां न गिनो वाली जो कहावत है ना, मीन्स go see the outcome, what is the outcome, whether the war has been won, whether the match has been won, whether a person has become successful, how he has become successful, it is not necessary to know every time, because if you are doing so, definitely people, जैसे हमने वो वाला एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें जोकोविच से इंटरव्यू था, जोकोविच बता रहे थे सक्सेस का क्या रेट है। तो ये इस तरीके का इंटरव्यू हो जहां पे पॉजिटिव क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो दैट इज मॉरल, दैट इज गुड, दैट इज मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग। वेयर एज अगर इसको देखिए, जोकोविच का इंटरव्यू फिर से देख लीजिए, इसका शॉर्ट एक, सो हियर Djokovic is positively describing things. कोई
निगेटिव चीजें ही पूछता जाए, निगेटिव एस्पेक्ट्स से ही बात करता जाए, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन दैट दे तो जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो और उससे एसोसिएटेड जो लोग होंगे, दोज हु आर एसोसिएटेड, whose names will crop up in the interview, जिनके नेम सामने आ जाएंगे, they all will lose their reputation. That's why she says it is immoral. It's a crime, just as much of a crime as an offense against any person, as an assault, and just as much merits punishment. तो कह रही है ये क्राइम की तरीके से है, जैसे लोग दूसरों को इंजर कर देते हैं वैसे ही इंजरी है, किसी की रेपुटेशन खराब कर देते हैं, तो वो केसेस होते नहीं है, मानहानि का मुकदमा होता है ना, डैमेजिंग द रेपुटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं. So those cases are filed in the court if such kind of interviews are taken. It is cowardly and vile. ठीक है, ये कॉवर्ड एक्ट है. आपको सच्चाई बात करनी है तो आप जनरली पूछिए, डोंट टॉक इट ऑन द इंटरव्यू. यू आर ट्राइंग टू डिमिनिश द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. आप उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं, आप उसकी अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि उसने कैसे इतनी मेहनत करके he has done a wonderful thing, but instead you are doing something wrong. No respectable man would ask it, much less give it. तो कोई भी आदमी इस तरीके के इंटरव्यूज नहीं देना चाहे, है ना. कोई भी अच्छा आदमी जिसने कोई भी इलीगल मीन्स से या जो सक्सेसफुल नहीं रहा है, जैसे कौन हमारे साथ है ना, जो सक्सेसफुल नहीं रहा है वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देना चाहेगा. नेवर लाइक टू गिव एन इंटरव्यू बिकॉज टफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. जो फालतू के क्वेश्चन आंसर करे, फालतू के इंटरव्यूज देगा, है ना. आम कैसे खाए जाते हैं, कैसे थे, डिसॉल्व. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. ठीक है, लेकिन किपलिंग ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मार्क ट्वेन जो दूसरे राइटर थे उनके साथ ऐसा ही किया था कुछ साल पहले. ठीक है. H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin, Saul Bellow, who had consented to be interviewed on several occasions. So ये जो फेमस पीपल थे इनका इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने खुद को पाया. H.G. Wells जो है वो खुद बताते थे कि जब उनका इंटरव्यू हुआ था H.G. Wells का, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किए थे. ठीक है, ये भी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट थे पुराने. ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी लिखी है, द इनविजिबल मैन. H.G. Wells ने, अगर आपको याद हो, द इनविजिबल मैन, जिसपे हमारे यहाँ मिस्टर इंडिया बनी, चश्मा लगा कर गायब हो जाता है हीरो. तो हीरो दिस फेमस साइंटिफिक फिक्शन. Scientific fiction means story based on imagination. उन्होंने लिखी है H.G. Wells ने, a very famous book. It's a beautiful book. If you get a chance, read it. उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी. Where a scientist becomes a rogue. ठीक है, साइंटिस्ट जो है when he gets absolute power, how he starts behaving. It's a beautiful book. तो उनका इंटरव्यू हुआ था, फिर उन्होंने जब वो परेशान हो गए, बोले बहुत टफ है and he was not able to answer certain questions. बट उन्होंने बाद में फिर इंटरव्यूज लिए. ठीक है, तो समटाइम्स ये भी होता है that the interviewer becomes an interviewee, that he himself takes the interviews of other people. उन्होंने जोसेफ स्टालिन, सॉल बेलो जैसे फेमस राइटर्स, एक रशियन रेवोल्यूशनरी थे, एक प्ले राइट नॉवलिस्ट थे, इनके इंटरव्यूज लिए. ठीक है, जो कि वर्ल्ड में आप क्या कह सकते हैं, लिटरेरी अपहीवल के लिए जिम्मेदार है, लिटरेरी रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, लोगों की थिंकिंग ब्रॉड करने में. ठीक है, समझ में आया. अच्छा, ये भी नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर हैं सॉल बेलो. तो उन्होंने क्या कहा था, सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being thumbprints on his windpipe. Very, very important thing. उन्होंने क्या कहा, thumbprints है windpipe पर, गला चोक कर देना है, गला दबा देना, उन्होंने ये कहा था. मतलब इंटरव्यू ने उनकी बाल की खाल निकाल ली. ये आज such tough questions that
he felt very humiliated, insulted, respected. तो वो उन्होंने उसका कंपैरिजन किया कि जैसे कोई गला दबा रहा हो, you are not able to breathe. Such an interview he had given. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. लेकिन फिर भी ये सर्विसेबल मीडियम है. कोई भी मैचेस खत्म होते हैं, उसके बाद आप देखते हैं वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें इंटरव्यूज ही तो होते हैं. ये क्या है? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यूज, जिसको आप रिवॉर्ड सेरेमनी कहते हैं, जहां पर मैन ऑफ द मैच को बुलाया जाता है, द कैप्टन इज वेलकम, और इन इंडिविजुअल इवेंट्स लाइक बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एक्सेट्रा, वेयर individual players are welcome, they are asked certain questions, although at that particular moment, since they are celebrating the victory of the particular game, only positive questions are asked, situation is asked, okay, negative questions are not asked, whereas in a studio, where a sit-in interview is happens, जहाँ पर बैठ कर इंटरव्यू लिए जाते हैं, वहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होता है. वहाँ पर जो इंटरव्यू होता है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आता है, आज इनको ऐसे फंसाएंगे, आज इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, समझे? तो ये सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का, ऐसा होता है. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. तो हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं, उनके बारे में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, तो इंटरव्यू सबसे अच्छे माध्यम है. आप हिस्टोरियंस के इंटरव्यू देखिए, राम दुनियानी हैं, वो इंटरव्यू में बात करते हैं, बताते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ द रूलर्स इन्वेडेड इंडिया, एंड we can say leaders or which rulers were prominent, more powerful. राहुल गांधी का इंटरव्यू देख लीजिए, वो क्या बताते हैं, how boldly he talks about previous PM Manmohan Singh, who is responsible for orchestrating the actual development of India by opening India for economic policies of liberalization and globalization. So उनके इंटरव्यूज हुए, उनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये सब eminent personalities हैं, and they are able to answer the questions very boldly. तो ये क्या है? इनसे हमको प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है सोसाइटी में और किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, व्हाट आर द पॉलिसीज, हाउ अ टीम वन, व्हाट आर द आइडियाज बिहाइंड इट, ये हमको इनके इंटरव्यू सुनकर या पढ़कर पेपर में भी निकलते हैं. आजकल तो डिजिटल मीडिया में है, आप उनको सुन सकते हैं एज वेल, है ना. एक्चुअली दे हैपन इन कैमरा, फिर उसका एक्सर्ट्स जो है निकलते हैं न्यूज़पेपर में, आप उनको पढ़ के भी एंजॉय कर सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर. ठीक है, तो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है इनके मीडियम से. कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आंसर कर रहा है. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. So, लेकिन इसका एक बड़ा important aspect क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके पास बहुत पावर होती है. क्यों इतनी पावर होती है? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है बराबर. वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है. He has a great power with him. उसके हाथ में, उनके हाथ में बहुत पावर होती है. कैसे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंटरव्यू को किसी भी मोड पर ले जाते हैं. इसीलिए जो प्रीवियस राइटर्स थे, लुइस कैरल थे, सॉल बेलो थे, जिन्होंने थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप बताए, ठीक है, जिन्होंने सबने क्या कहा है कि ये ऑडियंस हैं, दे आर वेरी वेरी टफ सिचुएशंस, टफ मोमेंट्स ऑफ लाइफ वेयर ट्रूथ इज आस्क्ड. सच्चाई पूछी जाती है, जिसको बयां करना बहुत ही टफ होता है. ठीक है, जिसको बताना टफ. समझे? So this was the explanation of the first part, and following up are a few questions which are extremely important. You still need to prepare, and in the upcoming episode we will be dealing with the second part where Umberto Eco is being interviewed और उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए. ये एक पार्ट आपको बताया गया कि किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, and how a clever orator answers those questions. ठीक है, the interview might not always be immoral, हमेशा immoral नहीं हो सकता, अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता. बस सीखते रहिए अंकुर के साथ. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. बाय.